کسی کی چوری کی اور توبہ کر دی تو کیا اس کو توبہ کر کے وہ رقم واپس کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے، کوئی چور صاحب تھے، انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کی یا کسی جاننے والے کی چوری کری، پھر اللہ کی توفیق سے توبہ کر لی، تو اب انہیں احساس ہے کہ میں اس کا حق واپس کر دوں، تو کیا توبہ کہہ کے اسے حق واپس کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں بھائی، اگر آپ کو شرم آ رہی۔ ویسے تو آپ کے ایمان اور آپ کی توبہ کی اتنی جرت ہونی چاہیے، آپ جا کے اسے کہو بھائی جو سزا دینی ہو آپ مجھے دے لو، میں چور تھا آپ کا اور یہ سامان آپ کا میں نے چرایا تھا، اتنا مال، 1,00,000 2,00,000 5,00,000۔ لیکن اگر اتنی ہمت نہیں ہے، بے عزتی کا ڈر ہے، تو بالکل آپ توبہ کہہ کے اسے۔ اگر ہم ماں باپ کے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد کیا وہ زکوٰۃ کاٹ کر وارثوں میں بانٹیں یا ایسے ہی بانٹیں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کا مال سونا وغیرہ ان کے پاس تھا اور یہ ہر سال اس کی زکوٰۃ دیتے تھے، اب ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ وارثوں میں بٹنا ہے، تو وہ زکوٰۃ جتنی انہوں نے ادا کی ہوئی ہے وہ کاٹ کے اس میں سے جب وارثوں میں بانٹیں یا پورا مال بانٹ دیں؟ کیوں جی بھائی، میرے حساب سے تو زکوٰۃ ماں باپ پہ تھی، آپ نے کیوں دی؟ وہ اپنا آپ دیتے، لیکن اگر آپ نے دے دی اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے تو اب کاٹنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی مجبوری ہے اور آپ کی ضرورت ہے تو آپ وارثوں کے سامنے بات رکھ دو، اگر وہ خوشی سے آپ کو اجازت دے دے تو آپ اتنا رقم اپنی کاٹ لو اور باقی بانٹ دو، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو انہوں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ اس کی زکوٰۃ دو، پھر آپ کو نہیں کاٹنی چاہیے۔ ویسے اس طرح کے وارث نہیں ہوتے ماں باپ، جو لوگ اس طرح سے آپس میں بٹوارا کرتے ہیں بعد میں اور عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، تو تمام وارث جو ہیں وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور بات رکھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی رقم وہ دے دیں گے، مجھے تو یہ جو وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے یہ اکثر انتقال کے بعد ہی ہوتا ہے، جو رائج ہے یہ زندگی میں ہی ہو جائے تو اس میں بہت سارے جھگڑے فسادات سے بچا جا سکتا ہے، کیا یہ ٹھیک؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو وراثت کا معاملہ ہے اگر زندگی میں ہو جائے تو بہت سارے جھگڑوں سے آدمی بچ جائے گا۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ماں باپ نے اپنی زندگی میں بچوں کو سب کچھ بانٹ دیا، اپنے نام کچھ نہیں رکھا اور پھر انہوں نے بھیک مانگی۔ اس لیے میری رائے بالکل نہیں ہے اللہ کے قانون کے خلاف چلا جائے۔ جو اللہ نے قانون بنا دیا کہ ڈیتھ کے بعد بچوں کا ہے 66%، 33% تک وہ وصیت کر کے جا سکتا ہے غیر وارثوں کے لیے، 66% 67% وارثوں کا ہے جو حق اللہ نے طے کر دیا، لیکن وہ مرنے کے بعد ہے۔ اپنی زندگی میں کوئی کچھ دینا چاہے تو دے بالکل، لیکن اصل میں وراثت جو بٹے گی وہ مرنے کے بعد ہی ہے، اس لیے ہم اپنی نہ چلائیں اللہ کے قانون میں تو ہم پریشان بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ کو بہت کچھ پتہ تھا، وہ ہمارا کریٹر ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا بیتنے والا ہے، اس نے سارے قانون ہمارے حساب سے بنائے کہ اس میں ان کو سہولیت رہے گی۔ وراثت کے معاملے میں کبھی کبھی غلط وراثت بھی کر دیتا ہے انسان، بچے سے لڑائی ہوئی کی وجہ سے یا بچی سے لڑائی ہونے کی وجہ سے اس میں دوا بھی ہوتے ہیں مقابلہ، لیکن روپ میں بھی ہوتا ہے، سیڑھی سے بھی ہوتے ہیں، تو جو دوا بنی ہے یا پھر اس پہ سائن کری انہوں نے تو ان کے اوپر بہت ہوتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے کسی نافرمانی کی وجہ سے بچے کی اس سے جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے، بلکہ ایسی وصیت کر جاتے ہیں کہ اسے حصہ نہ دیں، تو جو اس میں گواہ ہوں گے کیا وہ بھی گناہ گار ہوں گے؟ بالکل گناہ گار ہوں گے بھائی، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ نے جو وراثت طے کر دی اس میں کوئی دخل اندازی نہ ہو۔ اگر وہ غصے میں ایسی حرکت کر بھی گئے تو قرآن کی ایک آیت اشارہ یہ کرتی ہے کہ غلط وصیت کی اصلاح ضروری ہے، تو وراثت میں اسی طرح بڑھنا چاہیے جو اللہ نے طے کر دیا، ورنہ اسے بانٹنے والے، اس کے گواہ اور اس کے جو متفق ہوں گے سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر اس کا طریقہ پھر کیا ہوگا؟ یہ جو گواہ ہیں وہ اس کو وراثت کو صحیح کر کے تقسیم کریں گے؟ نہیں، وارث گواہ تو ایسے ہی ہوں گے نا، اگر گواہ گھر کے لوگ ہیں وارثوں میں سے ہی ہیں پھر تو انہیں چاہیے کہ اصلاح کریں، سارے اکٹھے ہو گئے کہ بھئی ہمارے باپ سے غلطی ہوئی، جائیداد اتنی ہے 70 لاکھ کی ہے، ہمارے باپ نے کہا کہ بھئی اسے نہ دی جائے، یہ 70 لاکھ کی 4 میں بانٹی جائے، 5 میں نہیں، لیکن ہم کیونکہ اللہ کا حکم مانیں گے، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی مخلوق کا حکم نہیں چلے گا، تو باپ کوئی معنی نہیں رکھتا اللہ اس کے رسول کے سامنے۔ اگر وہ غلط کر گئے تو بالکل انہیں اصلاح کرنی چاہیے جس سے وہ بھی عذاب سے بچے ہوں، ورنہ آخرت میں حق تلفی میں پکڑے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ کے رسول
ख्वाब में आए और आप फला चीज़ फला को बचाओ, तो क्या तस्दीक करें या मतलब ख्वाब की सुन के दे दें या क्या? इनका सवाल यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान लो ख्वाब में आके कहें कि फ़ला चीज़ फ़ला के आप पहुँचा दो, मान लो पैसे पहुँचा दो, सोना पहुँचा दो, कोई चीज़, तो उसे हम फॉलो करें या उसकी ख्वाब को किस तरह से मानें? भाई ऐसा है, नबी ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, उसने हक़ देखा। शैतान मेरी शक्ल में ख्वाब में नहीं आ सकता, लेकिन ये ख्वाब देखने की बात है। नबी ने ये नहीं फरमाया कि जो मैं ख्वाब में कहूँ उसे तुमने करना ही है। हज़रत जाफ़र, इमाम जाफ़र साहब जो शियाओं के इमाम हैं, हमारे भी इमाम हैं, उनके पास एक शख्स आया कि मैंने रात ख्वाब में देखा कि हुजूर ने आके मुझे हुक्म दिया कि तू शराब पी। तो उन्होंने कहा तूने गलत सुना होगा, नबी ने आके कहा होगा तू शराब मत पी, तेरे सुनने में फ़र्क होगा। तो हमारे ख्वाब में हमने क्या चीज़ सही सुनी क्या नहीं सुनी, क्योंकि ख्वाब की शरीयत में कोई हकीकत नहीं है। तो इसलिए अगर आपने नबी को देखा तो आपने नबी को ही देखा, ये तो आपका ईमान होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप उनकी उस बात को फॉलो करें कि जो आपके कान में पड़ गई, वो बिल्कुल भी नबी ने किसी हदीस में नहीं फरमाया। तो इसलिए इस बात से बचो आप। मान लो किसी रिक्शा वाले के ख्वाब में आके नबी ने कहा हो कि भाई तू 50,000 रुपये फला जगह दिया, वो कहाँ से लाया, उसके अपने घर में खाने को नहीं है, तो इसलिए इसकी हकीकत नहीं है। नबी ये कहें कि भाई फला के यहाँ जाके माज़अल्लाह इतनी चरस दिया, कैसे, वो कानून के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए नबी को देखना अलग बात है, और ख्वाब में उनकी कोई बात आप सुन लें, आपके कान में शैतान कोई उल्टा सीधा डाल दे, क्योंकि ये नहीं कहा नबी ने कि जो मैं बोलूँ वो मैं ही बोल लूँगा, शैतान नहीं हो सकता। ये कहा कि जिसने मुझे देखा उसने मुझे देखा, मेरा ख्वाब जो है सच्चा होगा। लेकिन फॉलो नहीं करना बात को इस तरह से। एक चीज़ है कि वो हराम भी ना हो कि और उसमें मतलब आपकी इस्तात में भी हो और हराम ना हो तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, लेकिन वो भी आपके ऊपर नफिल है, फ़र्ज़ नहीं है। वो भी आपके लिए ऊपर नफिल है, करोगे सवाब मिलेगा। नहीं, वो तो किसी को 50,000 का हुक्म दे अल्लाह मियाँ, और वो है लखपति, वो जाके दिया हुआ उसे, तो बिल्कुल अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। नहीं किया तो क्या कोई गुनाह नहीं, यही तो मैं बता रहा, ना करना कोई गुनाह नहीं, करोगे सवाब है। सर मेरा सवाल पूरा हो जाएगा। तो हमने दवा के बारे में पूछ रहा था, हमको अज़ाम मतलब गुनाह पे है, उनमें एक शरीफ लोग हैं अजीब ला रहे हैं माशरे के, लेकिन उन्हें शरीयत का पता नहीं इत्तफाक से, और अक्सर वो विरासतों में इस तरह दवा बनते हैं। एक हदीस सुनो पहले। नबी ने फरमाया तमाम मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का हुसूल फ़र्ज़ है। अगर आप ट्रेन में चढ़ गए और आपके पास टिकट नहीं है, आप टीटी से कितना ही कहते रहना कि मुझे पता नहीं था टिकट नहीं लिया जाता या टिकट लिया जाता है, आपको जेल में डालेगा, रसीद काटेगा आपकी, जुर्माने नहीं। तो बस अल्लाह भी यही कहेगा, कितना ही कहते रहे जी हमें तो पता नहीं था। वो कहेगा पता क्यों नहीं करा, मेरा नबी कह के किया था कि तमाम मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का हुसूल फ़र्ज़ है। अपनी माश के लिए देखो, आप 12-12, 15-15 साल लगाते हैं स्कूलों में अल्लाह की शरीयत सीखने के लिए। हमारे पास 1 घंटा भी नहीं कि हम जुमे को यहीं इकट्ठे हो जाए टाइम से। तो जो खानदानी लड़ाई होती है विरासत के ऊपर, उनका भाव की वजह से जाहिर सी बात है कि तो वो भी मुलविस हैं, सब मुलविस हैं। सब सारा बवाल उनके। अरे मेरे भाई, हुजूर ने फरमाया हराम से पला हुआ जिस्म आग के लिए है। तो जो अपने भाइयों का बहनों का हक मार के अपनी औलादों के पेट में भर रहे हैं, वो यहाँ खुश होते रहे कि हमारे पास हम पाला गाड़ी आ गए, हमारे पास फला प्लाजा हमने बना लिया, हमारी फला कोठी बन गई। असल तो वहाँ देखो ना, वहाँ क्या बनेगा तुम्हारा। हक तलफी का तो आप यकीन करो अल्लाह नमाज़ें माफ़ कर देंगे। ये हदीस से मैं बता रहा, कुरान की आयत तो है शिर्क के अलावा तमाम गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन हक तलफी के बारे में हदीस ये है कि अल्लाह मियाँ पल्ला झाड़ लेंगे कि भाई ये मामला तुम खुद निपटो आपस में। हाँ, नमाज रोज़ा हज ज़कात मेरे से माफ़ करा लो, लेकिन ये तो मामला तुम खुद निपटो। इसमें कोई भाई भाई भी नहीं, वहाँ इख्तियार ही नहीं होगा कि आप अपने भाई को माफ़ कर दो, कर ही नहीं सकते, यहाँ कर दो। इसीलिए कहता हूँ पैर पकड़ के माफ़ी मांग लो, माल दे के, तोहफे दे के पटा लो, रो के पटा लो, एक दूसरे को माफ़ कर दो, वहाँ आपके इख्तियार में नहीं होगा। कई इमाम वगैरह इस तरह की बात करते हैं, मुझे बताते हैं कि भाई आखिरत में ऐसा होगा कि एक आदमी के पास एक ही नेकी होगी, दोनों को तो ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ एक आदमी को एक नेकी की ज़रूरत होगी, तो
वो कह देगा तू मेरी नेकी ले ले, और वो नेकी ले लेगा तो वो हिम्मत रहेगा, और अल्लाह ताला को उसकी ये अदा बताएगी कि ये हिम्मत में कमाल ले रहा है, उसको भी हिम्मत देगी। तो क्या सब ऐसा है कि आखिरत में भी कोई आप अपने अमल के बदौलत चला जाए? देखो ऐसा है कि ये सब इस्तिलाहात हैं, लोगों ने लोगों को मोटिवेशन के लिए बनाई हुई हैं। असल बात यह है कि ऑथेंटिसिटी उसी चीज़ की है जो कुरान में या हदीस में आई है, तो आप सिर्फ उसे फॉलो करो। इन कहानी किस्सों के चक्कर में नहीं पड़ना। दीन कहानी किस्सों का नाम नहीं है, दीन अमल का नाम है और अल्लाह पे तवक्कल का नाम है, रसूलुल्लाह की सुन्नत का नाम है। अगर रसूल ये बात फरमा के जाते तो हमारे यहाँ पे लिखी हुई होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई साहब हमारे बुजुर्गान दीन मोटिवेशन के लिए इस तरह की चीज़ें लिख गए तो ये आम लोगों के लिए हैं। आप पढ़े लिखे लोग हो, दौड़ दो चार की तरह दीन को सीखो, खुद पढ़ो, सुन के नहीं, सुन्नी बनना। मेरे उस्ताद तो ये कहते हैं जो सुन्नी हैं वो हैं जिनके दिमाग सुन है, सुन सुन के सुन्नी हो गए। खुद पढ़ो, इस्लाम पढ़ने की चीज़ है। अगर आप खुद पढ़ोगे तो आप मुसलमान होगे, सुन्नी शिया नहीं हो सकते, गारंटी है इस बात की। जहन खुल जाएगा, ब्रॉड माइंडेड हो जाओगे, चीज़ों को समझने लगोगे। उलमाए दीन के पास जब जाओगे जब कहीं फंसोगे, वरना फंसने की नहीं, इंशाअल्लाह फंसना छुट्टी। ना ही कोई हदीस नहीं है, मैंने नहीं पढ़ी बिल्कुल। हाँ, अरे कैसे हो जाएगा, वहाँ तो इख्तियार होगा ही नहीं, चाह के भी नहीं माफ़ कर सकते हैं। और वहाँ तो एक दूसरे को पड़ी होगी, वहाँ तो जन्नत में भी जाने के लिए अगर एक निकी भी होगी उसके दर्जे बढ़ जाएंगे, तो कैसे दे देगा किसी को। और हो सकता है भाई इस तरह की कोई बात किसी ने किस तरह लिख दी, बस वो मानते हो भाई। बात यह है ना कि उतना मानो जितना नबी बता गया, दीन उतना ही है। ये कोई हराम कमाई का तोहफा दे तो क्या ले सकते हैं? इनका सवाल यह है, किसी की हराम कमाई और वो हमें तोहफा दे तो क्या ले सकते हैं? भाई आप इस गुमान के साथ लिख सकते हो कि इसकी हलाल कमाई भी तो है। मान लो कोई अफसर है और उसको रिश्वतें लेता है तो उसकी सैलरी भी तो होगी, और अगर फिर भी आपका दिल नहीं मानता तो आप उससे ले लो, किसी को सदका कर दो, इस नियत से कि अगर ये पाक हुई तो उसे सवाब मिल जा, नापाक हुई तो मेरी जान बची इससे। माँ बाप की ज़िंदगी में अगर वो बाकी औलाद के साथ ठीक हैं, एक के साथ ना हो, तो क्या अदालत जा सकते हैं जायदाद के बंटवारे के लिए? इनका सवाल यह है, कोई लड़का है दूसरे भाई के साथ माँ बाप ठीक हैं, उसके साथ ठीक नहीं है, तो क्या वो अपना हक़ लेने के लिए जदाद वगैरह में अदालत का दरवाज़ा खटखटा सके माँ बाप के ख़िलाफ़? यही है ना? बिल्कुल नहीं खटखटा सकता भाई। माँ बाप जो हैं वो जब तक ज़िंदा हैं वो मालिक हैं, वो किसी को दें, उसकी खिदमत से खुश हो गए, उसके बर्ताव से खुश हो गए, उनकी मर्ज़ी है। इज़्ज़त, माल, मोहब्बत वो उनके अपने इख्तियार की चीज़ें हैं सारी। आप में अपनी कमी ढूंढनी चाहिए आपको, ना कि अदालत का दरवाज़ा। क्या आप में क्या कमी है जो माँ बाप आपसे दूर हो गए? इसलिए मेरी राय नहीं है बिल्कुल कि आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ और अपने माँ बाप को इस आखिरी उम्र में तकलीफ़ दें। देने के तो तब भी नहीं आपको, ना आप जीत सकते हो, लेकिन उनका दिल टूट जाएगा आपकी तरफ से। और ये कैसी औलाद है जो हमें अदालतों में खींच रही, तो इसलिए इससे बचें। और उनकी डेथ के बाद तो विरासत आपको बंटनी है, वो तो अल्लाह का हुक्म है। सवाल ये, कज़ा हुए रमज़ान के रोज़े कैसे रखते हैं? पहले बात के रमज़ान की है, शुरू के रमज़ान? इनका सवाल यह, रमज़ान में जो रोज़ा कज़ा होते हैं शुरू के पहले रखें या बाद के पहले रखें? भाई शुरुआत से शुरू करें, जो शुरू में कज़ा हुए, मान लो पिछले रमज़ान के आपके बाकी हों, वैसे तो अगले रमज़ान से पहले पहले आपको रख लेना चाहिए कज़ा हुए हुए रोज़े, मगर ये फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप नहीं रख पा रहे तो आप अगले रमज़ान में रख सकते हो, लेकिन रखने चाहिए आपको शुरू से ही, कि जो पहले कज़ा हुए पहले रखें, जो बाद में कज़ा हुए बाद में। एक सवाल है मेरा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम पड़ोसियों के हुकूक बताते थे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं विरासत में भी उनका हिस्सा न रखे। एक कोई हदीस, और दूसरी हदीस कि अगर कोई पड़ोसी भी किसी पड़ोसी के घर में काम झाम करे ना, वही बिल्कुल भी उसे एतबार से या किसी दूसरे एतबार से, और उसकी आँख खोल दे पत्थर मार दे, उसका कोई पवा नहीं है उसको, इसलिए इन चीज़ों से बचो। वहाँ भी पड़ोसी और वहाँ भी पड़ोसी। देखो इनका सवाल समझ गया भाई। एक हदीस तो यह है कि पड़ोसी को विरासत में हिस्सा न दे दे अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि मुझे
اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا. جبرائیل اتنے حق بیان کرتے تھے پڑوسیوں کے, اور دوسرے کے اگر کوئی تاک جھانک کرے پڑوسی کے گھر میں پڑوسی, تو اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے تو اس سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا اس کا. دیکھو پہلی حدیث جو ہے نا وہ پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتی ہے کہ آپ کو یہ موٹیویشن کیا جا رہا ہے, ٹیچنگ دی جا رہی ہے کہ پڑوسیوں کو بہت زیادہ آپ نے جو ہے ان کو اوبلائز کرنا ہے, ان کو عزت دینی ہے, کیونکہ بھائیوں سے پہلے وہی آئیں گے آپ کے پاس اگر کوئی مصیبت آتی ہے. تو اس لیے جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے تھے. دوسری جو حدیث ہے وہ پردے سے متعلق ہے کہ اسلام میں پردے کی اتنی اہمیت ہے. اگر کوئی آپ کے گھر میں تاک جھانک کرتا ہے, نامحرم عورتوں کو تاکتا ہے, تو اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کر دی کہ اس کی آنکھ پھوٹ جائے, آپ نے کوئی ڈنڈا یا کوئی پتھر پھینک کے مار دیا, آپ کو تو نہیں پتہ کون ہے, اور پتھر آپ نے مار بھی دیا, تو اس تاک جھانک کرنے والے کا جو بھی نقصان ہوگا اس کا آپ سے کوئی بھرپائی نہیں کرائی جائے گی آخرت میں. تو دونوں حدیثیں بالکل ٹھیک ہیں, ایک حقوق سے متعلق ہے اور ایک پردے سے متعلق. ٹائم دیکھ لو جی کیا ہو گیا آج, بس اور تو سب ہو گیا جی آج کے لیے.